Good morning, students. In chemistry, nowadays we will study second chapter, acid, base and salt. But salt is not in the syllabus. According to 30% reduction of the syllabus in chemistry, salt is not the part of the syllabus. In last video, we have discussed the concept of acids or base according to Lewis or Bronsted and Lowry and the Arrhenius. Arrhenius concept, Bronsted and Lowry concept, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था. Today, our topic is dissociation of acids. Acid. आपने क्या पढ़ा आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कि ऐसे पदार्थ, दो सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयंस आर कॉल्ड एसिड्स. तो एसिड को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट विल डिसोशिएट इनटू H प्लस and H plus ion. It gives H plus ion on the dissociation of acids when dissolved in water. And the characteristic property of acids are due to H plus ion. H plus ion. What is H plus ion? That is H plus. How we can obtain it? Hydrogen. When hydrogen loses a electron, it gives H plus ion. It means that is hydrogen atom. On dissociation or after losing a electron, it gives H plus ion, and this H plus ion is also called a proton. And the characteristics feature of acids is due to this H plus ion. When this H plus ion reacts with water to form hydronium ion, to form an ion that's called hydronium ion. वाटर के अंदर ये H प्लस आयन कंबाइन करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं. और एसिड की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो एसिड में पाए जाने वाले इस H प्लस आयन बाद में वाटर से मिलकर के क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है. तो सारे की सारे जो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं वो ये इस H प्लस आयन की वजह से होती है. Now let's see dissociation of some acids. For example, HCl when dissolved in water, it gives H3O plus and Cl minus. H3O plus and Cl minus. And the characteristic features of this HCl ion is due to H3O plus or H plus ion. Or you can say that when HCl dissolved in water, it gives H plus or Cl minus. And the characteristic features of HCl is due to the presence of H plus ion in the solution. Now let's see H2SO4. When dissolved in water, it gives it gives 2H3O plus SO4 minus minus. हाइड्रोनियम आयन लिबरेट करता है और सल्फेट आयन को लिबरेट करता है. नेक्स्ट, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड
Now let's see another example. H3O, H3PO4, that is phosphoric acid. When dissolved in water, it gives, वाटर के अंदर डिजॉल्व होने पर क्या देगा? 3 हाइड्रोनियम आयन देगा, 3H3O प्लस प्लस, और क्या देगा? फॉस्फेट आयन PO4 माइनस माइनस, और एक माइनस हो रहेगा वैलेंसी. फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है. तो यहां पर हमें वैलेंसी का भी ध्यान रखना है. तो दिस वन इज द डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स व्हेन dissolved in water. Now let's see dissociation of base. Now dissociation of a base. According to Arrhenius concept, what is base? A base is the substance when dissolved in water gives OH ion, and the characteristic features of a base is due to the presence of hydroxide ion, OH ion. Let's see the dissociation of a base. Example, NaOH. On dissociation, it gives Na plus plus OH minus when dissolved in water. So the characteristic feature of a base is due to the presence of hydroxide ion. That is hydroxide ion. Now, another one example is when dissolved in water. NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. नाम जरूर नोट करेंगे, मैं बोल रहा हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड. When dissolved in water, it gives NH4 plus ammonium ion and hydroxide ion. Ammonium ion and hydroxide ion, and the characteristic feature of the base is due to the presence of hydroxide ion. Now next, magnesium hydroxide, MgOH का whole twice. This one is the magnesium hydroxide. When dissolved in water, it gives 2Mg plus 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 2OH minus, magnesium ion and hydroxide ion. Another one example is the aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide, on dissociation, when dissolved in water or on dissociation, it gives 3 aluminium plus 3 plus 3OH माइनस. 3 हाइड्रोक्साइड आयन आते हैं और एल्यूमिनियम यानी मेटल को ये क्या कर देता है? लिबरेट कर देता है, तोड़ देता है जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है. एंड द स्टूडेंट्स, NaOH is a monoacidic base. This OH ion also represents the acidity of the base. And in a similar condition, when HCl, it gives H plus plus Cl minus. It gives H plus ion. So this HCl is the monobasic acid. This H plus indicates the basicity of this acid, or in the case of base, this OH ion indicates the acidity of the base. So this is the dissociation of base. Now our next topic is pH, strength of acid and base, or the pH. Now let's see the strength of the acid and base. Quantitatively, it can be measured in terms of pH. Now, what is pH?
pH is the negative logarithm of H plus ion. And in 1909, Sorensen defined a new scale for the measurement of acid, strength of acid and base, that is pH. pH stand for P stand for potential and H for hydrogen. Means potential of hydrogen, and this scale is devised by Sorensen in 1909. And how we can define it? pH scale or the pH value. pH, it is the negative logarithm of H plus ion. It means pH is equal to minus log H plus. pH is the negative logarithm of H plus ion, or we can write this one is the formula. pH is equal to minus log H plus ion, or we can write minus log H3O plus, because in acidic medium, when this H plus ion dissolves in water, will be changed into hydronium ion. And the for pH of a neutral solution, is equal to 7, and for acidic solution pH is less than 7, and for basic solution this pH, the value of pH is greater than 7. Now you can see a chart in your book that denotes the pH of some acids or some base. Now we will study about the measurement of strength of acid and base. Now, measurement of strength of acidic and basic solutions. How we can measure the strength of acidic and basic solutions? There are two means of measurement of strength of acidic and basic solutions. Number one, by using universal indicator. By using universal indicator, and the second one is by using pH meter. By using pH meter. In the first case, we have the strips of universal indicator. According to the Sorensen scale 0 to 14, we have the different measurements which shown by the strips, and when we dip it into the solution, it indicates the impregnated color of the respective solutions in which we dip the strip. जिस स्ट्रिप को हम सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो वो जो पीएच स्ट्रिप होती है वो उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन का क्या बताती है, पीएच बता देती है. लेट्स सी. अकॉर्डिंग टू द स्केल वी हैव द स्केल that is 0 to 14.
यहाँ सोरेनसन ने क्या किया, इसको 0 से लेके और 14 तक डिवाइड किया। इसके अंदर पर्टिकुलर क्या थे, कलर थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and the 14. Now 0 which represents weak dark red. The color is dark red. Similarly, on this scale, that is the red, यानी जब आप क्या करेंगे, which इस स्ट्रिप को पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं और रेड कलर आता है, तो वो उसकी पीएच को क्या इंडिकेट करता है कि इसका जो पीएच है वो 1 है। नाउ अनदर 2 इज ऑल्सो रेड, 3 इंडिकेट्स ऑरेंज and the 4th indicate orange. Now 5th indicates orange yellow and 6th indicates greenish yellow. Or 7, that is the pH of water and the color is green. Good morning, students. Today's topic. Color is green. Now 8 is green, blue. Now 9th is blue and 10th is navy blue. Whereas 11th is purple color. Now 12th is dark purple. Whereas 13 and 14, 13 is violet and 14 is also violet. These are the particular colors. When we dip this strip, we get these colors on the paper strips. So by using universal indicators, we obtain the strength of acidic and basic solutions. And the second one is by using pH meter. अगर हम क्या करें, अगर किसी भी सॉल्यूशन का हमें या एसिड का या बेस का जो भी लिक्विड हमको दिया हुआ है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीएच निकालना है, तो हम पीएच मीटर के द्वारा भी उसको क्या करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम पीएच को फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है, हमारा पीएच मीटर होता है। पीएच मीटर के द्वारा हम रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ pH in our daily life. Now, role of pH in our daily life. First case, in agriculture. As you know that our country is agriculture based country, and by determining the pH of soil we can find out whether it is acidic or alkaline. हम सॉइल का पीएच देखकर, सॉइल का पीएच नोट करके, जो कि जिस क्रॉप के लिए हमें बेनिफिशियल होता है कि हमें क्या चाहिए, एसिडिक चाहिए या एल्कलाइन चाहिए, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हम पीएच, सॉइल का पीएच डिसाइड करके हम उसको क्या बना सकते हैं, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए हेल्पफुल बना सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट इज इन एग्रीकल्चर, यानी
किस तरीके की मिट्टी के अंदर कौन सी फसल हम ग्रो कर सकते हैं, उसकी एसिडिटी और एल्कलिनिटी को पता करके हम फसलों का उत्पादन कर सकते हैं. नाउ सेकंड इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. The second one is biological processes. यानी हम most of the bacteria grow best in neutral or slightly alkaline medium. So by knowing the pH, we can adjust the medium of biological processes like. अब ये कहाँ कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर, दैट इज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है, क्या होता है आपने देखा होगा, आपने मार्केट से या घर पर कभी ट्राई करके देखा हो कि हम क्या बनाते हैं, कुछ स्वीट्स ऐसी हैं जो फर्मेंटेशन के द्वारा तैयार की जाती हैं. जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जलेबी. जलेबी के अंदर हम क्या करते हैं, खमीर को उठाते हैं और हम उसके अंदर क्या डालते हैं, जो मैदा होता है उसको हम लगभग 24 घंटे पहले, अगर मान लिया हमें जलेबी बनानी है तो हम उस खमीर को 24 घंटे पहले के लिए क्या करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस पर रख देते हैं. और उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, इसमें ईस्ट और क्या निकलते हैं इसमें से, देयर आर सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच आर बेनिफिशियल टू दिस प्रोसेसेस. सो दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको मीडियम को चेंज कर सकते हैं. एंड एंजाइम हाइड्रोलाइसिस, अनदर वन इज द प्रोसेस एंजाइम हाइड्रोलाइसिस. यानी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, देयर आर सो मेनी एंजाइम्स विच वर्क्स ऑन इन एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम. तो हम इस प्रोसेस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पीएच पहले ही पता करके हम उसको चेंज कर सकते हैं. कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम के अंदर काम करते हैं एंड समवन इज दैट वर्क्स इन एल्कलाइन मीडियम. तो हम उस मीडियम को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, पीएच के द्वारा पता करके. ये हमारे लिए क्या हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है. एंड द थर्ड और नेक्स्ट वन इज स्टरलाइजेशन. Sterilization, that is the most common process which are helpful in the biological processes. Sterilization क्या करना होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज कर भी हम उनको अपने यूज में ले सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज इन कोरोजन रिसर्च. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन कोरोजन रिसर्च. You can see by measuring the pH of sea water. Sea water हमें पता है कैसा होता है, that is alkaline. The effect of alkaline sea water on the materials used for building ships and submarines is studied, and this help in devising new materials for ship building which can रेजिस्ट कोरोजन. क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सबमरीन्स वगैरह होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ आयरन आर्टिकल्स. और जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत खारा होता है, एल्कलाइन होता है, तो उसके ऊपर जंग ना लगे, हम उसको रेजिस्ट उस वाटर से कर सकें. तो कोरोजन रिसर्च के अंदर भी हम पीएच के द्वारा क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं. एंड द another one is in digestive system. In digestive system, in this case acid सभी के प्रोड्यूस होता है. एसिड प्रोड्यूस बाय द स्टोमक हेल्प इन डाइजेशन. एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, उनको क्या करता है, उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है. If too much acid is formed, you will take antacid. अगर ज्यादा एसिड बन रहा है तो हम क्या ले सकते हैं, एंटासिड ले सकते हैं.
दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाम याद रखेंगे आप, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटासिड इसके द्वारा। और मार्केट के अंदर बहुत सारे एंटासिड हैं और सबसे बढ़िया एंटासिड के रूप में हम सोडियम बाइकार्बोनेट, आगे आप पढ़ेंगे जो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और यूजेस हैं उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज ए गुड एंटासिड, यानी जिसको हम घर पर किसके नाम से जानते हैं, जो हमारे किचन के अंदर आसानी से मिल जाता है, दैट इज नोन एज बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा। वो भी कैसा, वो एक अच्छे एंटासिड के रूप में काम करता है। एंड अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टूथ डिके कॉज्ड बाय एसिड्स। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के जो टीथ होते हैं वो किसके द्वारा, एसिड के एक्शन के द्वारा, यानी शुगर विद एसिड के एक्शन के द्वारा कैसे हो जाते हैं, बचपन में खराब हो जाते हैं। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच इन माउथ, यानी अगर हमारे माउथ का पीएच क्या होगा, लोअर देन 5.5। इफ इट लोअर देन 5.5 पीएच, इससे कम हो जाएगा तो हमारे दांत जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, जो शुगर और इस एसिड के कारण से जो बैक्टीरिया मुंह के अंदर पनपते हैं उसके कारण से टूथ डिके होता है। इन माउथ प्रोड्यूसेस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग एंड यूज रिंस इन माउथ, रिंस माउथ आफ्टर ईटिंग एंड यूज टूथपेस्ट विच वी आर बेसिक फॉर टीथ प्रोटेक्शन। यानी हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कुछ खा रहे हैं, मीठा वगैरह या कुछ भी खा रहे हैं, तो हमें कुल्ला करना चाहिए पानी के द्वारा। और पेस्ट का जो मीडियम होता है वो एल्कलाइन मीडियम होता है, जो हमारे दांतों को क्या करता है, सेफ रखता है। एंड नेक्स्ट, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। देयर आर सो मेनी इंसेक्ट्स इन एनवायरमेंट कि उनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आंट्स। आपने देखा होगा कि चींटियां जब कभी काटती हैं तो स्किन के ऊपर इरिटेशन होती है और वो जो एरिया जहां उन्होंने अपना डंक छोड़ा है वो एरिया रेड हो जाता है। ऐसे ही हम किसकी बात करते हैं, मौत जो कीड़े होते हैं जैसे ततैया है या सांप है या बिच्छू है, उनके अंदर क्या होता है, एसिड भरा हुआ होता है, जिसके कारण से वो एरिया क्या हो जाता है, इरिटेट होता है और रेडनेस ले जाता है। तो आंट्स के अंदर मोस्ट कॉमन क्या होता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। यदि हमें पता है तो एसिड है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या प्रयोग करें, एल्कलाइन एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का या एल्कलाइन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एंड देयर आर सम प्लांट्स के केस में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। बीज और आंट्स का तो मैंने आपको बता दिया। और प्लांट्स में है stinging nettles, Urtica dioica, that is the plant Urtica dioica, जो कैसा होता है, इसके संपर्क में यदि हम आ जाते हैं तो हमें क्या होती है, इरिटेशन होती है और स्किन का जो भी पार्ट इसके कांटेक्ट में आ जाता है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो these are the role of pH in our daily life. And in last we will know about the universal indicator, that is the most common or important definitions। जो लास्ट बोर्ड एग्जाम हुआ है वो उसके अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन पूछी गई है। ए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स विच गिव ए ग्रेजुएटेड चेंज ऑफ वेरियस कलर्स ओवर ए wide range of the pH. Or most common example of universal indicator is phenolphthalein. That is the most common example of universal indicator is phenolphthalein. और अभी हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात की थी, तो पीएच स्ट्रिप जो होती हैं वो भी उसके अंदर ही प्रयोग में आई जाती है। These are
these universal indicators are also present in the form of pH strips. So students, this is the part of today's. In next video we will cover about the some salt, because क्योंकि some compounds, क्योंकि जो साल्ट वाला पोर्शन है वो आपके लिए क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया. तो हम साल्ट डिस्कस ना करके हम जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी क्या देखेंगे, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस को कवर करेंगे. इस वीडियो में केवल इतना ही. यदि इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो भी क्वेरी आपकी बनती है उनको सॉल्यूशन आप मेरे से ले सकते हैं. इस वीडियो में केवल इतना ही. ओके, थैंक यू वेरी मच.